हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और हम एनिमेशन के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे भी कि केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, वो हम लोग एनिमेशन वाली वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले एनिमेशन की वीडियो हम लोग देख लेते हैं। Almost everything we see or touch in our daily life is the result of a chemical bond. The air we breathe, the food we eat, the clothes we wear, and so on, are all made up of one or more chemical bonds. The world is generally not composed of isolated atoms. Rather, it is composed of molecules formed as a result of chemical bonds. The strong force that holds together the constituent particles, atoms, ions, or molecules in a chemical species is known as chemical bond. The chemical bonds are broadly classified as ionic bond, and covalent bond. Let us discuss these chemical bonds in detail in this module. The bonding which results due to the complete transfer of valence electrons between atoms is called ionic bonding. It is a type of chemical bond that generates two oppositely charged ions. Ionic bonding is observed because metals have few electrons in its outermost orbital. By losing those electrons, these metals can achieve noble gas configuration and satisfy the octet rule. Similarly, non-metals that have close to 8 electrons in its valence shell tend to readily accept electrons to achieve its noble gas configuration. In ionic bonding, more than one electron can be donated or received to satisfy the octet rule. Sodium metal has electronic configuration as 2, 8, and 1. It has one electron more than a stable noble gas structure. If it gives away that electron, it would become more stable. On the other side, chlorine has electronic configuration as 2, 8, and 7. It has one electron short of a stable noble gas structure. If it could gain an electron, it too would become more stable. Thus, the sodium atom donates its valence electron to achieve stable octet configuration. This creates a positively charged cation due to the loss of electron. The chlorine atom receives one electron to achieve its stable octet configuration. This creates a negatively charged anion due to the addition of one electron. The sodium ions and chloride ions are held together by their strong electronic attractions between the positive and negative charges. Covalent bonding. A covalent chemical bond results from the sharing of electrons between two atoms with similar electronegativities. The electronic configuration of chlorine atom is one electron short of the argon configuration. The formation of the chlorine molecule can be understood in terms of the sharing of a pair of electrons between the two chlorine atoms, each chlorine atom contributing one electron to the shared pair. In the process, both chlorine atoms attain the outer shell octet of the nearest noble gas, that is argon. The dots represent electrons. Such structures are referred to as Lewis dot structures. Thus, the chlorine atoms are joined by a single covalent bond. A single covalent bond is formed when one pair of electrons are shared between two atoms. It is depicted by a single line between the two atoms. A double bond is formed when two atoms share two pairs of electrons with each other. It is depicted by two horizontal lines between two atoms in a molecule. This type of bond is much stronger than a single bond, but less stable. This is due to its greater amount of reactivity compared to a single bond. For example, in the carbon dioxide molecule, we have two double bonds between the carbon and oxygen atoms. When three pairs of electrons are shared between two atoms in a molecule, a triple bond is formed. It is the least stable out of the three general types of covalent bonds. The two carbon atoms in the ethyne molecule are joined by a triple bond. तो रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में यदि बात किया जाए तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन यदि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं
तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इस रासायनिक आबंध वाले टॉपिक में नंबर 1 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। कोई भी एलिमेंट हमारे पास दे देगा, कोई भी यदि एलिमेंट दिया तो उसकी वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी, इस वाले टर्म में हम लोग पूरा देखेंगे। दूसरे वाले टर्म की बात की जाए तो वैलेंसी के बाद हम लोग बॉन्ड के बारे में देखेंगे कि हमारा आबंध क्या होता है। दूसरे वाले टर्म में हम लोग आबंध के बारे में देखेंगे कि कोई एक एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से कैसे साझेदारी करता है। ये सब टर्म हम लोग किस में देखेंगे, आबंध में देखेंगे, बॉन्ड में देखेंगे कि अगर NaCl के साथ बॉन्ड के द्वारा अटैच हुआ है तो कैसे बॉन्ड हुआ बना है। ये सब टर्म हम लोग वैलेंसी और बॉन्ड को मिला करके देखेंगे। तो जैसे हम लोग बॉन्ड वाला फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो बॉन्ड में हम लोग 3 टाइप्स के बॉन्ड पढ़ेंगे। जो तीसरा हम लोग का होगा टॉपिक, इसमें होगा इंपॉर्टेंट सबसे आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, आयनिक बॉन्ड, जिसे हम लोग हिंदी में आयनिक बंध बोलते हैं। चौथा वाला टॉपिक जो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बॉन्ड है, जिसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। पांचवा वाला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम लोग उप सहसंयोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देखेंगे। तो ये हमारे पास जो तीनों बॉन्ड दे रखे हैं, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, इस पूरे केमिकल बॉन्डिंग में यही तीनों बॉन्ड हमें बहुत अच्छे से पढ़ना और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, फिर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो अगली टॉपिक जो नंबर 6 वाली टॉपिक होगी वो हमारी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कैसे कोई एलिमेंट दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस वाले टर्म में हम लोग देखेंगे। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। छठवीं वाली जो 7वीं वाली टॉपिक हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के कहने का क्या मतलब है कि कोई अगर हमारे पास एलिमेंट दे दिया, उस एलिमेंट्स में हम लोग कितना एनर्जी दें कि अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को त्याग सके, तो उस प्रकार की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। तो इससे हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। 8वीं वाली टॉपिक जो होगी हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बॉर्न हावर प्रोसेस। बॉर्न हावर प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बॉर्न हावर प्रक्रम क्या होता है, कैसे कोई मॉलिक्यूल, कैसे किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें एनर्जी कितनी कितनी लगती है, ये किसके टर्म में पढ़ेंगे हम लोग, बॉर्न हावर प्रोसेस के टर्म में पढ़ेंगे। तो बॉर्न हावर प्रोसेस क्या है, इस सब टर्म हम लोग इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद 9वीं टॉपिक जो होगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बॉर्न हावर प्रोसेस। जैसे ही हमारा एंड होगा तो हम लोग आगे टर्म में पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, आबंध कोटि क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 10वीं वाली टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है संकरण वाला टॉपिक है। इसे हम ट्रिकली भी आप लोगों को बताएंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का या तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, उसमें हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाले टर्म में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये टोटल हमारे पास 10 टॉपिक है। 10 के बाद अगली टॉपिक के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसमें जो अगली टॉपिक होगी 11वीं टॉपिक में हम लोग देखेंगे रेजोनेंस के बारे में। कोई भी मॉलिक्यूल में कैसे रेजोनेंस शो करता है, अनुनाद को कैसे हम लोग शो करवा सकते हैं, इस पूरे टॉपिक में देखेंगे। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अनुनाद क्या होता है, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अनुनाद कैसे शो करता है। जो 12वीं टॉपिक हमारी होगी अनुनाद के बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे तो अगली टॉपिक जो होगी हम लोग 12वीं टॉपिक जो पढ़ेंगे वो एमओटी थियरी के बारे में पढ़ेंगे। एमओटी थियरम, एमओटी थियरी जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी।
फिर उसके बाद वाले टर्म में हम लोग 13वें टर्म में जो पढ़ेंगे वो होगी हमारी वेस्पर थियरी। यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट थियरम है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरम। अगली जो टॉपिक होगी वो हमारी होगी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरम। ये जो वेस्पर थियरी हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वेस्पर थियरी के आधार पे देखेंगे किस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, किस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कौन सा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं आप लोगों को कह दूं कि बताइए CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, H2O का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें हम लोग बॉन्ड एंगल भी देखेंगे और स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सारी टॉपिक हम लोग वेस्पर थियरी में बात करेंगे। तो ये तो मेरा केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रो था कि केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक में हमें टोटल पढ़ना क्या है। अब सबसे बड़ी बात रह गई यह कि इस केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो हम लोग डेली कब पढ़ेंगे, लाइव क्लासेस कब से चलेगी। तो जो आप लोगों का रोजाना शाम को 6 बजे से 7 बजे तक इसके लाइव क्लास को हम लोग देखते रहेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। कल से डेली क्लासेस शो करेगा, आप लोग आसानी से टाइम टू टाइम देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग इंट्रो से स्टार्ट किए हैं, एनिमेशन के साथ मैं आप लोगों को इंट्रो समझाने की कोशिश किया हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास भेजे तो तुरंत चला जाए। धन्यवाद।